Good evening, students. We are going to continue our topic, effects of electric current, lecture number 5. Let me discuss what points to be covered in today's topic. Here, you have to discuss about the electrical motor. The electrical motor, what is the basic purpose of electric motor? It will be convert the electrical energy into the mechanical energy. What is the role of electrical motor? To mechanical energy. Electrical energy converted into the mechanical energy. And construction and working of electric motor, how it is going to make and how it will be going to work. It's basically working on the application of Fleming's left hand rule. How it works? On the basis of Fleming's left hand rule. And where it uses, where you are finding somewhere rotation, all the where we are using the electrical motors, in your fan also, in a where the objects are revolving, in your washing machine, in your cooler, in everywhere, those are where we are observing where there some rotations are there. Then we are using the electrical motor. And galvanometer. What is the galvanometer? Galvanometer is a sensitive device. With the help of that device, we are able to measure the potential difference as well as the current. So both we are able to measure with the help of the device. Let me discuss one by one all the here. If you are finding that in a figure, the picture is given. The picture is of electrical motor. Here inside given this shifting. This is the coil. Here, if this is frame body is given, carbon brushes. These are the main important parts of electrical motor. Basically, two types of motors are there: AC and DC. What is the meaning of the AC? Those are working on the alternating current that is in our electricity, like your fan. If it is fan is a AC fan, it is a AC motor. DC means those motors are applicable on the cell, electrical cell, pencil cell, or whatever the electrical the cell, direct current. They are the DC motor. In your wristwatch also, the motor is there. Which motor it is? DC. Because of that gears that the gears at the hands are shifting. Minutes hands, our hands are going to shift. Okay. These are also type of motor only, the DC motors. Here, the basic constructions of given the electrical motor. What is the first point? The electrical motor is a device those convert electrical energy into the मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जहां पे मशीन्स है ना, मूवमेंट्स आते हैं, किसकी वजह से मूवमेंट्स आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारे मूवमेंट्स आ रहे तो वो क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मोटर्स. देखो तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो फिगर में यू नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. व्हाट इज द फोर्स? कल देखिए फॉर्मूला अपन, रिमेंबर है आपको? क्या है फॉर्मूला? हाँ क्या है बोलिए? आई बी एल है ना, साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एल. इसके बीच का एंगल थीटा आपका बी और एल के बीच का एंगल है ना. वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, एफ इक्वल्स टू आई बी एल क्रॉस, है ना. तो इसको आई मल्टीप्लाइड बाय बी क्रॉस एल, लाइक दिस आल्सो वी कैन राइट. ओके, हियर इफ यू आर फाइंडिंग दैट मोटर, द साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बराबर है, दो पोल दिया है आपको, है ना. तो अभी यहाँ पे ये क्या है? तुम्हारा सेल लगा है. सेल का मतलब क्या है? तुम्हारे कौन सी मोटर है आपकी? ये इट्स द डीसी मोटर. डीसी मोटर में क्या होगा? तुम्हारे दो तुम्हारे कम्युनिकेटर है ना, हाफ सी है. दीज आर द की नोन एज द स्प्लिट रिंग, है ना. हाफ सी है ना. सी यानी क्या है? सी टाइप शेप है इसका. पूरा कंप्लीट सर्कल है क्या? वो नहीं है. इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट यानी टुटकेसो, है ना. स्प्लिट तो सेपरेट रिंग्स है, दोनों में गैप है. स्प्लिट रिंग्स आर देयर. दिस प्लग की and current direction of current is from positive terminal to the negative terminal. It is the direction of current. Now you know about the Fleming's left hand rule. What about the magnetic field? How it works? It is always from north to the south. तो अपन मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ. ये क्या है तुम्हारे? आपके क्या है तुम्हारे? ये these are the magnetic fields, करेक्ट. ये क्या है आपके? मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट कैसा जा रहा है? देखो अभी करंट कैसा जा रहा है तुम्हारा. सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, it will moving from to the
commutator key is carbon brushes. Carbon brush plays a very important role to control the inertia. Then current flows from here to here, then again from that part. Okay, let me change the color. करंट कैसा आ रहा है आपका, फिर इधर आ रहा है, बराबर है. इधर से फिर क्या जा रहा है तुम्हारा आपका करंट, ये लाइन से, ये कॉइल से जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर से इधर जाके फिर से यहाँ पे आपके कार्बन ब्रशेस पे. इस तरह से क्या आपका करंट मूव हो रहा है. ओके, दैट रेक्टेंगुलर फ्लेम इज नोन एज द आर्मेचर. क्या बोले उसे, तो यहाँ पे देखो अप्लाई हाउ द फ्लेमिंग्स रूल्स आर गोइंग टू अप्लाई. क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू नो द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है. व्हेन वी स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, 3 fingers mutually perpendicular to each others, है ना. इसमें क्या करें, thumb, this is known as the index finger and this is known as the middle fingers. If the middle finger shows the direction of the current and the 4 fingers show the direction of magnetic field, then thumb shows the direction of force. देखिए अभी कैसा हो रहा है, देखो अभी, है ना. तो यहाँ पे क्या है आपका, अब करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव करंट का यहाँ पे जा रहा है, बराबर है. और पता है आपको फोर्स क्या है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ IBL sin थीटा. तो यहाँ पे एंगल क्या है, दो बोथ आर द पैरेलल. कौन से, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा तुम्हारा, ये आर्मेचर में, इन आर्मेचर BC, BC पे एंगल क्या हो गया, BC इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. BC और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पैरेलल है, वहां पे एंगल क्या हो गया आपका 0. व्हाट इज साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, है ना. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा BC पे 0 हो गया एंड आर्म. उसी तरह से देखो ये ADB, ये भी क्या है तुम्हारी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है. तो वहां पे भी क्या होगा तुम्हारा फोर्स क्या होगा तुम्हारा 0. द आर्म BC एंड आर्म AD पे फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज 0. व्हाई, बिकॉज द एंगल between B and L is 0. And what is sin 0? Is 0. F क्या होता है आपका, F equals to IBL sin of theta. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा फोर्स, the force on the arm BC and arm AD equal to 0, बराबर है. BC पे और AD पे फोर्स क्या हो गया आपका 0 हो गया. तो अभी आपको किसके बारे में सोचना है, यहाँ पे तो फोर्स 0 हो गया आपका. देखिए तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे का फोर्स 0 और यहाँ पे का फोर्स भी क्या हो गया आपका 0. F इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर, है ना. तो अभी देखिए दो आर्म AB एंड आर्म CD, तो इसमें क्या है एंगल क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है. दैट इज इफ द एंगल इज 90 डिग्री मींस फोर्स विल बी द मैक्सिमम. फोर्स क्या होगा आपका, sin ऑफ 90 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90, sin 90 इक्वल्स टू 1. देन द फोर्स ऑन आर्म AB and arm CD is maximum, is दोनों पे क्या है फोर्स तुम्हारा क्या है मैक्सिमम है. तो फोर्स खाली ये है आर्म पे AB पे लगेगा और फोर्स कहां पे लगेगा आपका CD पे लगेगा. तो ये आर्म पे फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स लगेगा. कैसा लगेगा अभी अपन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सिर्फ फोर्स लग रहा है किस पे, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, सिर्फ 2 आर्म पे फोर्स लग रहा है. किस पे लग रहा है, AB पे लग रहा है और CD पे लग रहा है. ये 2 आर्म पे फोर्स लग रहा है क्या आपका, नहीं. तो कैसा लग रहा है देखो, अभी अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करना है. ये क्या दिखा रही मेरी मिडिल फिंगर, क्या दिखा रही मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस वन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है नॉर्थ टू साउथ, ये उंगली मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही. देखो ये करंट क्या है तुम्हारे मिडिल फिंगर, क्या दिखा रही मेरी करंट. तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है बोर्ड के अंदर, बराबर है कि नहीं. तो ये क्या इसका मतलब इट विल बी गोइंग डाउन. ये इसका डायरेक्शन क्या तुम्हारा इधर आ रहा है, बराबर है. ये कैसा हो रहा है, मूव इनसाइड द बोर्ड. फिर यहाँ पे करंट ऐसा आ गया, तो करंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुआ करंट का, फोर्स कहाँ हुआ वहां पर आउटवर्ड. यहाँ पे फोर्स क्या हो गया आपका आउटवर्ड हुआ, बराबर है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है. तो यहाँ पे क्या करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये था और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा इधर हो गया. ये आर्म पे फोर्स क्या होगा तुम्हारा नीचे गया और ये आर्म पे फोर्स क्या हुआ आपका ऊपर आ गया. तो ऊपर आने से क्या होगा तुम्हारा स्पीड का रोटेशन हो जाएगा. फिर ये आर्म्स का रोटेशन कैसा होगा तुम्हारा, इस तरह से आर्म रोटेट होगी, बराबर है. ये पॉइंट CD क्या होगा आपका ऊपर आएगा और AB पॉइंट क्या हो जाएगा नीचे जाएगा. समझ में आ रहा है क्यों जा रहा है CD ऊपर, CD के ऊपर क्यों जा रहा है आपका, विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना. करंट का डायरेक्शन क्या है उसका, अपन देखिए इधर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे जा रहा है.
इसलिए क्या है उसका ये आर्म क्या होगी तुम्हारी इस तरह से होगी। वेन इट कंप्लीट द हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, तो ये जो वायर जो है इसका यहाँ तक आएगा और ये वायर यहाँ तक आएगा। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट विल शिफ्ट ऑन द अदर आर्म। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रशेस से ये जो पहले यहाँ पे था तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो आर्म चेंज हो गया। देन अगेन इट विल बी रिपीटिंग द सेम कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी कंटिन्यूसली ना रोटेशन। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, इट विल बी कंटिन्यूसली ना रोटेशन। इस तरह से क्या होगा, आपकी मोटर जो घूम रहा है, तो घूम रहा है यानी क्या तुम्हारी मोटर क्या है, तुम्हारी क्या करी, तुम्हारी वर्क करी। समझ में आया कैसा मैकेनिज्म हो रहा है इसका। हाँ, ये क्या है तुम्हारे दो मैग्नेट। एक्चुअली द मैग्नेट कैसा होता है इसमें, एक्चुअली आपके बुक में एग्जैक्टली इसमें फिगर नहीं बताया। तो मैग्नेट कैसा होता है एक्चुअली, दे आर द इसमें क्या एग्जैक्टली तो इसका रेडियस क्या होता है तुम्हारा सेम होता है। इसका स्पेरिकल होते हैं थोड़े से, जो कोनिकल शेप होता है इसका एग्जैक्टली स्पेरिकल होता है। तो उसमें क्या सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम ऐसा नहीं। तो उसकी क्या स्पेरिकल, इसमें एग्जैक्टली फिगर नहीं दिया है लेकिन आपके बुक में शायद हो भी सकता है। दे विल बी एग्जैक्टली स्पेरिकल, है ना। तो ये आर्म पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और नीचे के आर्म पे फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। तो फिर क्या हो रहा है तुम्हारा इसमें, ये जो आर्म सी डी क्या हो जाए तुम्हारा ऊपर आ रहा है और ए बी क्या आ रहा है तुम्हारा नीचे। द प्रोसेस विल गोइंग टू कंटिन्यू और यहाँ तक जाएगी तुम्हारे हाफ तक आ जाएगी। हाफ तक आने के बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इनर्शिया दैट विल बी शिफ्टिंग ऑन द अदर आर्म। शिफ्टिंग क्या तुम्हारा पहले इस पे था, वाई की पे था, वाई बार पे था, बाद में क्या एक्स पे आएगा, एक्स वाला फिर नीचे रख लेगा, वाई वाला ऊपर। द प्रोसेस विल गोइंग टू कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और इस तरह से क्या हो गया, आपकी जब तक तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोसेस तुम्हारी कंटिन्यूसली चलते रहेगी। समझ में आ गया कैसा वर्किंग हो रहा है। अभी सेम थिंग इट्स गिवन इन दैट द डीसी मोटर। ये कौन सा आपका डीसी है, ये कौन सा मोटर है आपका डीसी। तो एसी में क्या डिफरेंस है, एसी में वी आर कनेक्टिंग द टू कीज। टू यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, वहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं, है ना। अब इसको रॉड में कैसा होता है, अब एसी तो आपको शायद बुक में आपको एसी दिया क्या डीसी दिया, डीसी दिया है, देखो शायद आपके बुक के हिसाब से बनाया है इन्होंने, डीसी दिया होगा, है ना। तो डीसी में क्या है, अभी जनरेटर होगा आगे, तो जनरेटर में शायद उन्होंने बताया होगा एसी जनरेटर। दोनों भी तरीके से मोटर होते हैं, एसी मोटर भी होती है और डीसी मोटर भी होती है। दोनों में खाली इसमें डिफरेंस कहाँ गया तुम्हारा, यहाँ पे स्प्लिट रिंग और यहाँ पे स्लिप रिंग। वहाँ पे दो रिंग आएगी वहाँ पर, है ना। जनरेटर में जो भी है एसी आता है तो दो रिंग आएगी, एक दूसरे से दूर दूर आएगी, थोड़ा गैप होगा, है ना। तो वहाँ पे कार्बन ब्रश का काम क्या है, इट विल बी चेंजिंग द रोटेशंस। कार्बन ब्रश क्या करे, तुम्हारा लाइट को करंट को पकड़ना छोड़ना, करंट पकड़ना छोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया। तो यही तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया तुम्हारे मोटर का, है ना। इस तरह से तुम्हारे कॉइल्स, दीज आर द कॉइल्स एंड इट विल कॉइल क्यों हुए, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिज्म एंड द शिफ्ट विल बी गोइंग टू कंटिन्यू। ये तुम्हारा अंदर का शिफ्ट क्या हो रहा है, तुम्हारा रोटेट हो रहा है। समझ में आ गया कैसा हो रहा है वर्किंग कंस्ट्रक्शन। अभी जो हाँ, हियर गिवन द करेक्ट एग्जैक्ट फिगर I told ना the how it will be the given this will be the arc। ये क्या है आपका आर्क है, बराबर है। तो करंट कहाँ से जा रहा है तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से जा रहा है, दिस इज द स्प्लिट रिंग, इस हाफ सी है ना। ये तो हाफ सी दिख रहा है आपको, दिस इज द सी एंड हियर आल्सो द हाफ सी एंड हियर द कार्बन ब्रशेस आर देयर। यहाँ पे क्या है तुम्हारे, यहाँ पे कार्बन ब्रश था कोने पे, है ना। तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव से जा रहा है, तो कहाँ करंट जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पर। द फोर्स ऑन द आर्म्स एडी एंड आर्म बीसी आर 0, बराबर है कि नहीं। फोर्स ऑन आर्म कौन सा है, एडी एंड बीसी इज, दो आर्म पे फोर्स क्या आ गया आपका 0 आ गया। एंड फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड सी डी इज मैक्सिमम, कितना आ गया हो, इज इक्वल्स टू आई बी एल। तो एफ मैक्स कितना हो गया आपका, एफ मैक्स इक्वल्स टू आई बी एल। इट डिपेंड्स अपॉन दैट current, how much you are using the electric cell, as well as the which kind of the magnet you are using। मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, वो मैग्नेट की स्ट्रांगनेस पे भी लगेगा और आपके आर्मेचर कॉइल पे भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से करंट यहाँ पे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो ये कहाँ गया, पुश डाउन हो गए। ये क्या होगा तुम्हारा पुश डाउन एंड दिस विल बी द पुश अप। इसलिए इसका रोटेशन किस तरह से आ गया, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेशन कैसा आ गया उसका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वही फिगर यहाँ पे बताया, दीज आर द मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड इनसाइड द शिफ्ट इज गोइंग टू
continuously going to rotate. Clear? It will be understood very clearly. Good. Now the electrical motor uses कहाँ पर है? Various uses where the object we are finding that object will be going to rotate. जहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेट होता है वहां पे इसके क्या है यूजेस है. फैन किस लिए आता है यूजेस? कूलिंग पर्पस है ना. डीसी फैन. अभी डीसी मोटर मेरे रिस्ट वॉच में भी है. आपके क्लॉक में भी वॉच में भी क्या होती है तुम्हारी डीसी मोटर होती है. सेल डालते हैं उसमें क्लॉक की तुम्हारी रोटेट होती है. जहां पे भी आप रोटेशन देखते हो जहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रोटेट हो रहा है ना, तो वहां पे तुम्हारा घर पे तुम्हारे मिक्सर हो गया. मिक्सर में क्या पर कुछ पीसने के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं. जहां पे भी आप इलेक्ट्रिक मोटर पानी पंप करने के लिए भी मोटर इस्तेमाल करते हैं है ना. वो क्या है सभी के तुम्हारे क्या है वी कैन राइट वेरियस यूजेस है ना. जहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए गाड़ी में भी मोटर होती है अपने व्हीकल में है ना. क्यों? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस है ना. मोटर यानी क्या है उसमें क्या है तुम्हारा एक होता है तुम्हारा गाड़ी में की मोटर किस पे काम कर रही है तुम्हारी डीजल पे करती है या पेट्रोल पे करती है. दिस आल्सो द वर्किंग इज द सेम. ओके. तो उसमें भी कार्बन ब्रशेस होते हैं. वर्किंग इज द सेम है ना. तो वहाँ पे भी शिफ्टिंग होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट गोइंग टू change the speed. Got it now? We can rise for movement of that object in a circular. जहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा गोल मूव हो रहा है सर्कुलरली मूव हो रहा है आप देखते हर तरफ स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है तुम्हारा वही मोशन है. आजकल आप देखते ड्रायर होने दो कटर होने दो है ना. ट्रिमर शेविंग ट्रिमर में भी क्या है मोटर ही होता है ना. इलेक्ट्रिक ट्रिमर में वही है. just they are shifting the gears are in the different ways in a wrist watch, in a fan, cooler, the washing machine, mixer, whatever applications you can use there. तो यहाँ पे क्या गैलोमीटर. गैलोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस. इट इज सिमिलर एज द मोटर. इसमें क्या करता है गैलोमीटर में क्या करता है तुम्हारा इट विल बी शोइंग द बोथ द वे ऑफ द करंट. इसमें क्या दिखाता है पॉजिटिव करंट एज वेल एज नेगेटिव करंट. यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिखती है गैलोमीटर मीटिंग दिखती है. यहाँ पे -30 दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये साइड में दिख रहा है +30. Okay, when the galometer will be stable, it will be showing the at the zero, and it's very sensitive device. The galometer क्या कर सकते हैं अपन? We can measure the current as well as we can measure the potential difference. How we are going to measure the current? When the galometers we are connecting in series, then we are able to measure the current. And when we are connecting galometer in a parallel mode, when we are able to measure the potential difference. जनरली द गैलोमीटर्स द रिवर्स साइन. अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स है तो गैलोमीटर क्या जाएगा तुम्हारा ये डायरेक्शन में जाएगा. करंट पॉजिटिव तो गैलोमीटर क्या जाएगा तुम्हारा वो डायरेक्शन में. अपन इसमें देखे थे किसमें इंड्यूस करंट. अब यहाँ पे देखना है आपको इंड्यूस करंट क्या है ना. कॉइल में था. दिस इज द कॉइल एंड सपोज वी आर यूजिंग द बार मैग्नेट इन दैट कॉइल. अपन कॉइल में क्या कर रहे बार मैग्नेट डाल रहे हैं नहीं कर रहे. बार मैग्नेट डाल रहे हैं और नहीं कर रहे. तो वहां पे क्या हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है ना. करंट आ रहा है तो करंट मेजर करने के लिए क्या है अपने पास. तो देन दिस डिवाइस विद दैट डिवाइस वी आर एबल टू मेजर द करंट. मैंने बताया था आपको जब मैग्नेट क्या कर रहा हूँ मैं मैग्नेट जो इधर अंदर डाल रहा हूँ तो करंट का डायरेक्शन एक तरफ हो गया. फिर बाहर निकाल तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा अपोजिट. कैसे समझ में आएगा अपने को विद हेल्प ऑफ द गैलोमीटर है ना. जब अंदर जा रहा है मैं समझो जो iron rod, if suppose we are going to insert once, the ganometer gives the positive direction, deflection of positive directions, and when we are moving out, we are dragging out of the ganometer, then it is showing the deflection on opposite directions. If you are changing the terminal of the magnet, the deflection is also again going to change. The same way, by this process, we are able to measure the current with the positive direction as well as negative directions. When here we are finding the mechanical energy convert into the electrical एनर्जी है ना. गैलोमीटर से क्या देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हैं है ना. और वो करंट क्या कहते हैं अपन इंड्यूस करंट. क्या कहते हैं उसे इंड्यूस यानी क्या है जो कि अपन बना रहे हैं. इंड्यूस यानी क्या है अपन करंट वी आर गोइंग टू क्रिएट द करंट. दैट इज करंट इज नोन एज द इंड्यूस करंट. हियर a few questions are given. How does the magnetic fields affects the working of an electrical motor? How it will going to affect? क्या बताया देखो मैग्नेटिक फील्ड द हाउ मच फोर्स इक्वल्स टू I/B/L sin theta. Then how it affects force is directly proportional to the B.
तो B increases, the magnetic field increases, the force also going to increases. जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उतना उसका मोटर की कैपेसिटी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी. इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स अपॉन करंट आल्सो. If very strong magnetic field and if the we are suppose the switch is off, zero current, then what will be the force? Zero. 0 multiplied by item will be the 0. And if the angle is 0, then also the current, the magnetic field will be the 0. We discussed already the two arms, the force will be 0 only. समझ में आ गया? तो क्या हो रहा है तुम्हारा? How does magnetic field affects the working of the electrical motor? It will be affects in direct variation. If magnetic field increases, the strength of the motor is also going to increase. The next one, what is the functions of brushes of an electrical motor? Electrical brushes are the communicator. क्या करते हैं तुम्हारे दो शिफ्ट कर रहे हैं ना वायर, we already discussed they are shifting the wires. Here also the carbon brushes are there. तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारे ब्रशेस देखो है ना, ब्रश कार्बन ब्रशेस, दे आर यूजिंग द शिफ्टिंग दैट आर्म्स. तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारे आर्म्स है, देखो यहाँ पे भी क्या करे तुम्हारे आर्म्स पे, यहाँ पे क्या है तुम्हारे ब्रश है. तो यहाँ पे क्या है लगे वाले क्या करे, दे आर गोइंग टू शिफ्ट द कनेक्शंस है ना. ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे जो वायर तुम्हारे एक्स वाई पे है, एक्स वाई का तुम्हारा वाई पे है तो वाई वाला एक्स पे जाएगा, एक्स वाला वाई पे आएगा. तो शिफ्ट करने के लिए क्या है, उसको जब इनर्शिया में जाता है करंट तुम्हारा छोड़ना और पकड़ने काम कौन कर रहा है तुम्हारा, कार्बन ब्रशेस, दे आर कम्युनिकेटर्स. ओके, अंडरस्टूड? व्हाट इज यूज ऑफ कार्बन? इट्स ऑल moving objects. Okay, moving, we can write various objects are there. Here understood now, it is the communicators है ना, to communicate or to connect. Now here the name the least 3 common applications of electrical motors in everyday. आपको क्या करना है, एवरीडे में 3 मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर के एप्लीकेशंस लिखना है इन एवरीडे लाइफ. कहाँ पे देखते हो आप एवरीडे लाइफ में? तुम्हारे पास तो फैन पता है ना. तो नंबर 1 और क्या है लिखते हैं आप, है ना. लड़के शायद ड्रायर इस्तेमाल करते होंगे बाल सुखाने के लिए, है ना. और कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, मिक्सर पे है ना. वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाते हैं आप, है ना. पानी खींचने के लिए आप वाटर पंप करते हैं, वाटर पंप के लिए है ना, वाटर पंप. और क्या है आपका, मिक्सर. आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जरूरी कि कोई भी लिखो बोल रहे हो आप, है ना. आप जहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है तुम्हारा गोल घूमता है, वो वहां पे क्या है सब तरफ क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल मोटर है. उसने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर कौन सी मोटर है, एसी या डीसी. इफ दे मेंशन क्लियरली द डीसी मोटर, तो क्या लिखना है आपको, डीसी मोटर कहाँ पे है तुम्हारे रिस्ट वॉच में, डीसी मोटर है जो सेल पे चल रहा है. आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में जो होता है जो कूलिंग करने के लिए सीपीयू में, वहां पे भी क्या होता है तुम्हारा डीसी मोटर है ना. सीपीयू में फैन होता है, लैपटॉप में भी फैन होता है आपका कूलिंग करने के लिए, है ना. तो वो फैन क्या है तुम्हारा डीसी मोटर. मोबाइल में भी फैन होता है, पता है क्या आपको, मोबाइल में भी फैन होता है. वो कौन सा फैन है तुम्हारा, डीसी फैन. वो क्या है तुम्हारा, जो मोबाइल में हीट नहीं होना इसलिए क्या मोबाइल में कूलिंग करने के लिए फैन होता है छोटा सा, तो वो क्या है तुम्हारा डीसी मोटर. ओके, वी कैन राइट वेरियस एग्जांपल्स. द नेक्स्ट वन, व्हाई द इलेक्ट्रिकल मोटर्स प्रीफर्स over other types of motors in an electrical vehicle. तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी क्या कौन से मोटर इस्तेमाल कर, देखो why are the electrical motors prefers over other types of motors in electrical vehicles. तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में अलग व्हीकल्स क्यों प्रीफर करते हैं, बिकॉज द स्ट्रेंथ इज डिफर. सबकी स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी अलग है ना. why the electrical motors are preferred, क्यों प्रीफर कर रहे हैं other types of motors in electrical vehicles. तो क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इट इज क्यों, बिकॉज इट इज पोल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली है. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है आपकी, है ना. आजकल क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, पोल्यूशन फ्री है. इट विल बी कन्वर्ट मैक्सिमम एनर्जी एंड इट इज इकोनॉमिकली आल्सो, इकोनॉमिकली सस्ता है ना कंपेरेटिवली फ्यूल वगैरह से. तो इसके इको फ्रेंडली
आप लिख सकते हैं ना, ये क्या है तुम्हारा इको फ्रेंडली है, आयन क्या है इकोनॉमिकली है ना, कॉस्ट फ्री है, एंड इट विल बी हाईली इफिशिएंट, इफिशिएंसी भी ज्यादा है उसकी, है ना, जितना इफिशिएंसी दोगे उतनी तुम्हारी मोटर भी क्या करेगी, तुम्हारी व्हीकल में काम करेंगी. द नेक्स्ट वन, हाउ डज गैलोमीटर वर्क्स डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. देखो मैंने बताया गैलोमीटर क्या कर रहा है तुम्हारा, इट विल बी डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट. तो गैलोमीटर क्या करता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, है ना. गैलोमीटर क्या कर रहा है तुम्हारा, हाउ इट गोइंग टू डिटेक्ट. गैलोमीटर में कहता है गैलोमीटर इज हैविंग अगेन द इंड्यूस्ड कॉइल, इट इज एक्ट सिमिलर एज मैग्नेट. गैलोमीटर में क्या होता है, अंदर तुम्हारा एक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, कॉइल होता है गैलोमीटर में. क्या होता है तुम्हारे कॉइल में, इस तरह से इंडक्शन होता है. तो क्या है, जब तुम्हारा करंट जब जाता है, देन करंट जाने से क्या होगा तुम्हारा, इस दो मैग्नेट में क्या होगा तुम्हारा, रिपल्शन होगा तो अट्रैक्शन होगा. एंड हियर वी आर कनेक्टिंग विद दैट द one needle is there, and if suppose the magnet is going to repel, then it will be going to shift the place. Attract, it will going to shift the place. Electricity से क्या होगा तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है. इट इज गैलोमीटर इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इट गैलोमीटर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, the same pole of the magnet they will be repelled each others, and opposite pole of magnet they will attract. And if the current from the clockwise direction and anti-clockwise, since they are different, they are having the different poles, तो अलग अलग पोल से आएंगे, तो कभी अट्रैक्शन होगा, कभी रिपल्शन होगा. तो कभी क्या होगा तुम्हारा गैलोमीटर तुम्हारा कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, कभी नेगेटिव डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन दैट वेयर फ्रॉम द करंट इज गोइंग टू पास. गॉट इट. नाउ व्हाट वी लर्न टुडे, electrical motor. What is the electrical motor? It will be convert electrical energy into the mechanical energy. Construction and working of it. Construction we discussed. Now how it will be, just two magnets are there, strong magnet, the north and south, one armature coil is there. This is the armature coil, and here the commutator key, the shifting here, shifting rod, positive terminal, negative terminal of battery, plug key, the carbon brushes. This is your diagram. Okay, simple. This is your diagram of that electrical motor. The electrical motor uses, where we are finding rotation of objects. यहाँ पे भी आप रोटेशन देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स का, वहां पे सभी तरफ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिकल मोटर. द गैलोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, इट यूजफुल फॉर मेजरिंग करंट. आपको लगता होगा सर मेजरिंग करंट कर रहे हैं, तो हमने तो पढ़ा था कि क्या है, एम्पियर एमीटर है. तो गैलोमीटर इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस. क्या है तुम्हारा, वेरी स्मॉल करंट आल्सो इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट. छोटा भी करंट आता है, कम भी करंट आता है, तो क्या है तुम्हारा गैलोमीटर क्या है तुम्हारा डिफ्लेक्ट होता है. और इसमें क्या है तुम्हारा डिफ्लेक्शन भी दो तरीके से, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी देता है और नेगेटिव भी डिफ्लेक्शन देता है. गैलोमीटर इज सिमिलर एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये क्या है तुम्हारा, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट. That we discussed today. The few questions are there about the name, the key components of an electrical motors and describe their functions. तो की कंपोनेंट्स कौन से हैं. सबसे फर्स्ट वाला तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेल बैटरी है ना. तो बैटरी लगेगा. बैटरी का काम क्या है, इट विल प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इलेक्ट्रिसिटी करंट विल बी गोइंग टू फ्लो. कहाँ करंट जा रहा है तुम्हारा, फिर कंट्रोल करने के लिए उसे कौन है तुम्हारा, प्लग की, है ना. बैटरी सेल तो लगाया अपन ने, सेल के बाद में फिर प्लग की ओपन करना पड़ेगा, स्विच डालने के बाद में क्या करंट तुम्हारा फ्लो होगा, बराबर है. देन आफ्टर द कम्युनिकेटर कीज, सी टाइप का वो है ना कम्युनिकेटर कीज. देन कार्बन ब्रशेस के बाद में क्या तुम्हारा आर्मेचर कॉइल जो रेक्टेंगुलर कॉइल, उसे क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर कॉइल. एंड टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट है,
है ना, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज अ साउथ पोल, द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, these are the basic components of that our electrical motors. How they are going to work, सबका काम क्या क्या है? तो सेल का काम क्या है? टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस. की का काम क्या है? टू कंट्रोल द ऑन डिवाइस, डिवाइस पे कंट्रोल करने का काम क्या है तुम्हारा? की का है. फिर उसके बाद में क्या है तुम्हारे? वायर तो लिखने की जरूरत नहीं है. वायर का क्या है? वायर्स आर द कंडक्टर्स ओनली. ओके, वायर्स भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये नहीं पता है उसमें, ऐसा मेंशन नहीं किया. नेम द की कंपोनेंट्स, कुछ भी डाल सकते, वायर भी डाल सकते. वायर इज द गुड कंडक्टर, विल पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल. वायर के बारे में भी लिख सकते हैं आप. फिर उसके बाद में क्या जा रहे हैं अपन? वहां पे शिफ्ट पे जा रहे हैं, शिफ्टिंग पे. शिफ्टिंग किस पे लगे तुम्हारे? टू स्प्लिट रिंग है ना, दो सी है. तो उस पे क्या है तुम्हारा? कार्बन ब्रश. स्प्लिट रिंग इज फॉर द सेपरेटिंग दैट डिवाइस एक्स एंड वाई, सेपरेट करने के लिए अलग अलग बताया. कार्बन ब्रशेस आर कम्युनिकेटर्स. कार्बन ब्रश क्या करते तुम्हारे? कम्युनिकेट करते. फिर बाद में करंट जा रहा है तुम्हारा आर्मेचर कॉइल में, आर्मेचर कॉइल, एंड अगेन इट विल बी कमिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल. इस तरह से क्या तुम्हारा लूप कंप्लीट हो रहा है. एंड देन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट is showing the magnetic field, and according to the Fleming's left hand rule, when the magnetic field is parallel to the length of the conductor, जब length of conductor parallel में है, जब force क्या आएगा आपका? That time force will be 0. And when they're perpendicular, that time force will be the maximum. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक करंट तुम्हारा ऊपर जाता है तो फोर्स तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे नीचे जाएगी, फोर्स नीचे अप्लाई होगा, और नीचे जाता है तो फोर्स क्या हो तुम्हारा? ऊपर. इस तरह से क्या हो तुम्हारा? उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा फोर्स, अप्लाई प्रोड्यूस हो रहा है, और तो उसी के साथ तुम्हारा रोटेशन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. गॉट इट? द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मेचर इन द मोटर? आर्मेचर का काम क्या है? आर्मेचर का काम क्या है? आर्मेचर में व्हेन वी आर मैक्सिमम द वाइंडिंग इज देयर, इस पे डिपेंड्स अपॉन द वाइंडिंग आल्सो, बिकॉज वी नो द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स. नंबर वन इज करंट as well as the number of turns. जितने टर्न्स बढ़ाओगे आप, टर्न द आर्मेचर जो है ना, आर्मेचर पे यहाँ पे आप सिंगल वायर ऐसा है, सिंगल नहीं होता है यहाँ पे. क्या करते तुम्हारे? आपने देखे होंगे बहुत से कॉइल लपेटते हैं. मोटर कभी खोल के देखा है आपने? एक ही वायर नहीं होता ऐसा, मैं यहाँ पे दिखाया ऐसा. यहाँ पे क्या है तुम्हारे? नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पे होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? आर्मेचर कॉइल. तो वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम वायर्स होने से क्या है? तो मैक्सिमम दे आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिज्म्स. तो उसमें क्या है तुम्हारा? will produce the magnetisms. और सेम पोल मैग्नेट क्या करेगी? दूसरे को रिपेल करेगा तो अट्रैक्ट करेंगे. दे आर शोइंग द फोर्स. इसके से क्या हो रहा है तुम्हारे? उसमें विल क्रिएट द मोमेंटम इन शिफ्टिंग. वहाँ पे रॉड है ना, वो ये रॉड क्या है तुम्हारा? शिफ्ट है. जो रॉड था ना इसके अंदर, इसको पकड़ के ही तो ये आर्मेचर कॉइल घूम रहा है, जिसका मतलब नीचे का रॉड को भी क्या कर रहा है? घुमा रहा है. वो रॉड घूम रही है तो सब गेयर वगैरह किस पे है तुम्हारे? रॉड पे ही है. नीचे के रॉड पे सब गेयर वगैरह है ना, देखिए. हियर इफ यू आर फाइंडिंग दैट कॉइल, दिस इज रॉड शिफ्टिंग. ये क्या है तुम्हारा? रॉड है, शिफ्टिंग है ना. ये आप यहाँ पे कॉइल है ना, स्प्लिट रिंग से. ये क्या है तुम्हारा? रॉड है. तो रॉड पे क्या है? सब तुम्हारे गेयर्स वगैरह लगाए होते है ना. यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? रॉड. ये क्या है तुम्हारा? आपका है रॉड. तो रॉड पे क्या है? कोई भी गेयर्स वगैरह लगाए होते, तो यहीं से क्या है तुम्हारा? मूवमेंट क्या होगा तुम्हारा? चालू होगा. व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स इन अ इंडस्ट्रियल मशीनरीज? क्या है इसमें? क्या है रोल? क्या इंडस्ट्रियल मशीन में क्या है तुम्हारा? देयर विल बी द लॉट ऑफ एफर्ट्स मैन्युअली. मेनी थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कैरी इट आउट. तो मैन्युअली क्या है? अपना कोई कुछ चीज करना है तो बहुत मुश्किल जा रहा है. वहां पे क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर इट यूज फॉर द लिफ्टिंग द क्रेन आल्सो. क्रेन के लिए वही है तुम्हारा, पुलीज है, पुली रोटेट होते हैं है ना, टू शिफ्ट द अभी कोई आप गाड़ी से सामान शिफ्ट करना है आपको, टू शिफ्ट द ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आएगा, टू मूव द ऑब्जेक्ट के लिए काम में आएगा, टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या आएगा आपको? मोटर तुम्हारे काम में आएगा है ना. तो ड्रायर के लिए भी काम में आएगा, जहाँ पे पानी देना है वहां पे भी क्या है तुम्हारे को? मोटर तुम्हारे काम में आएगा. What is the galvanometer and what is the primary functions? Galvanometer क्या है तुम्हारा? It is sensitive device and it will be used for to measure the current, है ना, to measure the current. To measure the current. The next one,
एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स, कैसे काम कर रही है. स्टार्ट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जहां से बताना है आपको, जहां से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कैसे बताना है आपको, फ्रॉम बैटरी, है ना. इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी दे रहे हैं अपन, यहाँ पे कौन सी दे रहे हैं अपन, बैटरी. क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड रोटेशन ऑफ द राउटर, राउटर और शिफ्टर एक ही, राउटर है ना वो डंडा, तो किस तरह से तुम्हारा रोटेशन हो रहा है वो आपको बताना है. कैसा कहोगे आप, सेम. यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, बैटरी निकालना है, यहाँ पे प्लग की निकालना है. ये कहाँ जाएगा आपके, यहाँ पे शिफ्टर पे है ना, ये राउटर है, ये क्या है, रोटर. यहाँ पे क्या तुम्हारा, इसको लगे से वाला क्या तुम्हारा, ये स्लिप रिंग. यहाँ पे क्या है तुम्हारे कनेक्ट करने वाले, क्या है तुम्हारे कार्बन ब्रश, क्या है तुम्हारे कार्बन ब्रश. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे आर्मेचर कॉइल, ये क्या है तुम्हारे आर्मेचर कॉइल. देन हियर magnet, two strong magnet is north and south. Then depending upon the direction of current, if positive means it will be going down and it will be going to up. इस तरह से क्या होगा तुम्हारा जो रॉड जो है तुम्हारा, तो रॉड क्या होगा तुम्हारा इसमें रोटेशन में आएगा. इट विल बी ऑन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, दैट वन ओनली यू हैव टू राइट. It is enough for today's sessions. If anyone having the doubt in today's sessions, please ask and clear your doubts. कोई डाउट है क्या आज के टॉपिक में? Just we discuss about today is about the electrical motor today. It is a basically applications of Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule का applications है ना. With the help of Fleming's left hand rule, we discuss about how the force is going to apply, and because of the application of the force, the shifting is going to continuously. Got it? Shall we wind up the session then? Okay, thank you.